when you go through a tragedy like divorce, it can really take a toll on you. You're going through a lot of emotions, you're going through a lot. आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है. There are certain choices that you have to make. आगे जिंदगी आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है, but उस पीरियड में everything is going haywire, emotions are going all over the place, लोगों के sentiments are going all over the place, घर बदल रहे हैं, situation बदल रही है, finances बदल रही है, insecurities आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है. Eventually reality kicks in, and unfortunately reality ये है that life doesn't stop for anyone. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, and eventually we have to pick ourselves up, and हमने अपने आप को जितना टाइम हील करने के लिए देना था या जो करने के लिए देना था, उसके बाद एक पॉइंट आता है when you do have to get yourself up and you have to rebuild your life. Hi guys, this is Amna Kadar. Welcome to my YouTube channel, and if you haven't yet, please subscribe, comment, share and like. Also, turn the notifications on. Today we're going to be talking about rebuilding your life, and I'm going to tell you 4 ways where you can make it a little easier to pick yourself up from this tragedy and go and face the world again. जब हमारी तलाक होती है एंड व्हेन यू गो थ्रू अ डिवोर्स, तो बहुत सारी प्रोग्रेशन आपकी वहाँ रुक जाती है. यू एंड अप सफरिंग इमोशनली, यू एंड अप सफरिंग एट वर्क, यू एंड अप सफरिंग एट होम, बिकॉज उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही होती, योर होल वर्ल्ड कम्स टॉपलिंग डाउन. सो वो जो पीरियड है डिवोर्स का जो हम गुजार रहे होते हैं, उसमें तो हमें ये पता होता है दैट वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेजेस, बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसमें से आप एक दिन में से तो नहीं निकल सकते. ये बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है, या ये बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी कि यू नो व्हाट, अब तो 3 महीने हो गए, पेपर साइन हुए एंड लो वेर डन विद इट. नोबडी गेट्स डन विद इट दैट क्विकली. इट टेक्स टाइम टू हील. आपको चोट भी लगती है, इट टेक्स टाइम टू हील. कोई भी चीज़ होती है, इट टेक्स टाइम टू डू. कोई भी चीज़ एक दिन में जो नेचुरल होती है वो नहीं होती है, एंड हीलिंग इज अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस. Yes, after signing those papers, you can throw yourself in work and you can say, now I'm over it, but you're still carrying the trauma. Yes, you can also hang out with your friends and go out every night and start living the life of a single person, but you're still carrying the trauma. Until you sit and deal with the trauma and heal properly, what's going to happen is that you're going to take all of this trauma and hurt to your next relationship, yeah, wherever you go next, and you're going to end up in the same scenario before you know it. So I'm going to tell you 4 steps that might make it easier. They worked for me, मेरे लिए ये काम किए थे, and I hope that maybe somebody can find it easier when they use these 4 steps. Number 1, be patient. देखें, बहुत सारी चीज़ों में से हम गुजर जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको कहा, हर चीज़ को हील करने में टाइम लगता है. पेशेंस इज की. आपको पेशेंट होना पड़ेगा, दूसरों के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, अपने साथ. ये सारी बातें इनवर्ट की हैं, बिकॉज अब एक ट्रेजेडी हो गई है, अब आपकी जिंदगी चेंज हो गई है, अब आपने एक नया रास्ता निकालना है. नाउ यू हैव टू गिव रीबर्थ टू अ न्यू पर्सन. सो आपने ये सारा कुछ करने के लिए पेशेंस. देखें, कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, but you cannot properly move on and be happy in your life until you actually heal the trauma that you just went through. So you have to be patient with yourself. आपने अपने आप को टाइम देना है, आपने अपने लिए माइंडफुल रहना है. ये बड़ा गलत तरीका है कि you jump into other relationships immediately as soon as one of your relationships is over, because you're going to carry the trauma from that relationship into that. और ये जिस एस्पेक्ट में आप जाओगे, चाहे वो काम होगा, eventually it's going to catch up with you, and eventually there's going to be another heartache. तो उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम. देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना कि वक्त जो है वो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन वक्त बहुत कुछ सुधार देता है और बहुत चीजें बेहतर बना देता है. कुछ सिचुएशंस में, जिस तरह व्हेन देयर इज अ डेथ इन द फैमिली और डेथ ऑफ समबडी हु इज क्लोज टू यू, सब कहते हैं ना कि इस वक्त दो, इसको वक्त दो, बिकॉज यू कैन नॉट स्पीड अप दैट प्रोसेस. और वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज को भूल जाएं, बट समहाउ आप उससे डील करके एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो उस चीज में भी टाइम लगता है. इसी तरह से ये भी, दिस इज ऑल्सो डेथ ऑफ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो वो पार्ट जो है उसको आपने ग्रीव करना है, एंड यू आर गोइंग टू मूव ऑन. एंड वंस यू मूव ऑन एंड यू ग्रीव्ड प्रॉपरली, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रीबिल्डिंग योरसेल्फ. रीबिल्डिंग के अंदर अपने आप को टाइम दें, रीबिल्डिंग में पेशेंस दें. बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारी सिचुएशंस की वजह से, हमारी टॉक्सिक मैरिज की वजह से, टेरेबल ईयर्स जो एंड में गुजरे होते हैं, उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रुइन हो गया होता है, हमारी लो सेल्फ एस्टीम हो गई होती है. सो गेटिंग बैक टू वर्क माइट टेक टाइम. बहुत सारे लोगों से हम आइसोलेट हो चुके होते हैं. टू रीबिल्ड दोज फ्रेंडशिप्स अगेन, इट्स गोइंग टू टेक टाइम. टू रीडिस्कवर योरसेल्फ अगेन, इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस. पेशेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता. नंबर 2 इज गेट यूज टू द न्यू नॉर्मल. व्हाट डू आई मीन बाय न्यू नॉर्मल? न्यू नॉर्मल ये है कि जब आपकी शादी हुई थी और आप अपने पेरेंट्स के घर से उठ के आप अपने इन लॉज के घर गए थे या अपने घर गए थे, तो आपकी जिंदगी टोटली बदल गई थी. और
जिन लोगों के घर आप रहने गए थे या आपके इन लॉज का जो भी सिस्टम था उससे एडजस्ट करने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा होगा, या अपना भी घर सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाने के लिए टाइम लगा होगा। उसी तरीके से जब आप वापस अपने पेरेंट्स के घर आते हो तो प्लीज डोंट ऑटोमेटिकली अज्यूम कि नाउ यूल गो बैक टू हाउ यू वर बिफोर यू गॉट मैरिड। इट्स गोइंग टू टेक यू टाइम एंड योर नॉर्मल इज गोइंग टू चेंज। व्हेन यू गेट मैरिड आपका नॉर्मल क्या होता है, आप अपने हस्बैंड के साथ खाना खाते हो, यू नो यू वेक अप टुगेदर एंड यू डू थिंग्स टुगेदर, यू टेक द किड्स टू स्कूल, वापस आके भी आप एक दूसरे का वेट करते हो, एक दूसरे पे चेक करते हो। बट जब आपकी डिवोर्स हो जाती है, स्पेशली ऑन हॉलीडेज, स्पेशली ऑन स्पेशल ओकेजन, जिस तरह रमजान होता है या ईद होती है या न्यू ईयर्स होती है या इस तरह की जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, उसमें ज्यादा बंदे को फील होता है। बहुत दफा इस तरह हो सकता है कि शायद आप 50-50 कस्टडी शेयर करते हो, तो एक हॉलीडे पे आपके हस्बैंड के पास बच्चे हो, एक हॉलीडे पे आपके पास हो, यू नो ईद की नमाज के लिए शायद आपके हस्बैंड के पास हो, तो ईद की सुबह वो आपके बच्चे वहां पे नहीं होंगे। सो जब आपको आदत होती है एक फैमिली सिस्टम में चलने की, and then all of a sudden you find yourself all alone, this you have to accept is your new normal। इसकी वजह से आप डिप्रेशन में ही नहीं जा सकते, इसकी वजह से आप अपसेट नहीं हो सकते, एंक्शियस नहीं हो सकते, बिकॉज देन you'll never be able to move on। you have to be very mindful कि भाई ये मेरी अब जिंदगी थी जो खत्म हो गई है, अब मेरी जिंदगी ये है, एंड दिस जिंदगी इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर जिंदगी जो शादी से पहले थी, बिकॉज नाउ यूर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। इवन इफ यू आर लिविंग बैक at your parents' house, or if you're living by yourself, you'll have to get used to the fact that there will be some days when you will wake up alone। Yes, loneliness is another present that divorce brings with it, बट यू हैव टू गेट यूज टू इट। बहुत दफा ऐसे होगा कि आप कुछ करना चाहोगे लेकिन आप नहीं कर सकोगे, बिकॉज उन दिनों में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये सारी की सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आर योर न्यू नॉर्मल। अब आपने सुबह उठ के नाश्ता अपने आप को बना के देना है, कॉफी अपने आप को बना के देनी है। यस, एक टाइम था जब आप दोनों मिलके बैठ के नाश्ता करते थे, बट अब वो टाइम चेंज हो गया है। उसी की रिजेंटमेंट और उसी के गुस्से में अगर आप रहेंगे तो यूल नेवर बी एबल टू मूव ऑन। सो बी माइंडफुल कि ओके, यू नो व्हाट, नाउ माय लाइफ इज चेंज्ड, नाउ माय लाइफ इज डिफरेंट एंड दिस इज माय नॉर्मल। ये जो हम बैठे रहते हैं ना और पास्ट में रेमिनिस करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ऐसा होता था वैसा होता था, ठीक है, थॉट्स कम थॉट्स को, बट अब ये आपकी रूटीन है, ये आपका नॉर्मल है। सो प्लीज गेट यूज्ड टू द न्यू नॉर्मल एंड टेल योरसेल्फ दिस इज माय लाइफ नाउ। Third thing that I'm going to tell you is start with a clean slate। What I mean by that is आपने अपने माइंड को और अपने माइंडसेट को, अगेन ये जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ अब, इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स, दिस इज ऑल टर्निंग इनवर्ड्स। और ये आपने अपने लिए सारा कुछ करना है टू हेल्प यू मूव ऑन एज अ बेटर पर्सन, एज अ हैप्पियर पर्सन। आपने अब जिंदगी को इस नजरिए से देखना है कि यू नो व्हाट, यू हैव अ न्यू चांस एट लाइफ नाउ एंड यू बेसिकली हैड अ रीबर्थ। वो पैशन जो आप कभी फॉलो नहीं कर सके थे, वो जॉब जो आप कभी ले नहीं सके थे, वो काम जो आप कभी कर नहीं सके थे, वो मास्टर्स की डिग्री जो आप ले नहीं सके थे, बिकॉज जब हमारी शादी होती है तो हम बहुत सारी चीजें एज वुमेन कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं फॉर आवर हस्बैंड्स और इन लॉज और किड्स और our house or whatever। So now you are not answerable to a husband, you're not answerable to in-laws, you're not answerable to anybody, and you have a clean slate and you can do whatever you want instead of thinking कि oh no, अब मैं क्या करूंगी और अब मैं किस तरह इस चीज में जाऊंगी और अब मैं क्या कर सकती हूँ। You can start fresh and you can be whoever you want। as far as friendships are concerned, reconnect with your old friends again, उसके अंदर time लगेगा, but you can now connect with new people, you can connect with more people who have gone through a divorce and have similar experiences as you, and you expand your friend circle। तो you आहिस्ता आहिस्ता grow like this। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, but ये आप सोचते हो कि I can be whoever I want to be। and if you look at life in that perspective, because basically सिर्फ थोड़ा सा tweaking की जरूरत है और अपने perspective change करना है, इंस्टेड कि आप फेयर में बैठे रहो कि ओ नो अब मैं क्या करूंगी, आप एक्साइटमेंट में उसको चेंज कर दो और कहो कि यू नो व्हाट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कोई भी स्किल सीख सकती हूँ, मैं कुछ भी फॉलो कर सकती हूँ, आई कैन फॉलो एनी ड्रीम, आई कैन डू एनीथिंग, एंड आई स्वेयर टू यू इट एक्चुअली वर्क्स and you will actually find yourself feeling better। Number 4 is your mindset needs to be in the right place। Now, what I mean by that is, yes, there is a clean slate. You are excited about that rather than fear. You've taken it to excitement. Then you've been patient. You're giving yourself time to rebuild.
then you know that this is your new normal, or whatever you make your new normal, that will become your new normal. और जो mindset वाली बात है वो ये है कि you have to let go of resentment, you have to let go of anger, you have to let go of depression, you have to let go of all these things, because things are going to change. You are going to move on in your life and the other person is going to move on in their life, and things are going to be different. आपकी जिंदगी में कोई आ सकता है जो आपके, देखें बच्चे प्यार के होते हैं, ठीक है, जो उनसे प्यार करेगा बच्चे उसके हो जाएंगे। ये छोड़ दें कि अब अगर उसकी जिंदगी में कोई आया तो मेरा उससे मुकाबला शुरू हो जाएगा, या अब मेरी जिंदगी में कोई आया तो मैं प्रूव करने लग जाऊंगी उससे बेहतर जो है ये इंसान है मेरी जिंदगी में, ताकि मेरे बच्चे इसको ज्यादा अप्रिशिएट करें और उसको सजा मिले। इस तरह की अगर आप चीजें सोचती रहेंगी तो आप पूरी जिंदगी अपने आप को एक सर्कल में और एक लूप में फंसा के रखेंगी। यू विल नेवर बी एबल टू मूव ऑन एंड बी हैप्पी। एट द एंड ऑफ द डे आपका एम क्या होना चाहिए कि ठीक है ये हो गया, आई पुट इट टू रेस्ट, बट I have decided and I am choosing to be happy in my life. These are all things that are going to come from within. These are going to be choices. ठीक है, nobody is going to come and save you. Nobody is going to come and validate you. You need to save yourself. You need to validate yourself. So वो सब कुछ करने के लिए ये सारा जो anger और hurt और resentment और अंदर हमने जो चीजें भर के रखी हैं वो आप बाहर निकाल दें and start fresh. Have a respectful, if you have kids, have a respectful relationship. Because देखिए अगर तो बच्चे नहीं है, it is easier a little bit to move on from that person, because you can eventually cut ties. उस वक्त मुश्किल होगा but बाद में it will be easier to cut ties. But if you have kids together, तो ना आप अपने in-laws के साथ ties cut कर सकते हैं ना husband के साथ. Yes, you can devise a plan which works for you. You guys can be friends, you guys can have a good co-parenting situation going on, but eventually that person might want to move on sooner than you. अब उसके लिए आप उसमें रिजेंटमेंट में नहीं रह सकते, अपने बच्चों के कान नहीं भर सकते कि उनसे सही बात ना करना या ये ना करना। आई हैव बिन थ्रू दिस। जब मेरे फर्स्ट हस्बैंड की शादी हुई थी फिर से, और उन्होंने मुझसे पहले शादी कर ली थी, मैंने उनके 5 साल के बाद जाके शादी की थी, तो वो पहली दफा जब अपनी वाइफ को लेकर आए थे मेरी बेटी को पिक करने के लिए, तो ही डिडंट ब्रिंग हर इनसाइड एंड आई टोल्ड हिम व्हाई हैवंट यू ब्रॉट हर इनसाइड, एंड ही सेड कि ओ ताकि तुम उसको ये कर सको, एंड आई सेड नो, आई वांट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद हर एंड आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद हर, बिकॉज यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे मेरी बेटी ने तुम्हारे घर जाना है, और जैसे मैं उसके साथ बिहेव करूंगी वैसे वो मेरी बेटी को ट्रीट करेगी। एंड अल्लाह का शुक्र है टिल टुडे आई स्टिल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हर। बट मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ था। जब मेरी दूसरी शादी हुई थी तो मुझे दूसरी तरफ से बहुत बैकलैश आया था। और देखें, किसी की शादी किसी की वजह से ना टूटती है ना जुड़ी रहती है, ठीक है ना। वो दो लोग जो होते हैं उस शादी में या उस रिश्ते में, वो उन्हीं की वजह से टूटता है रिश्ता, और उन्हीं की वजह से, चाहे आपके इन लॉज डिफिकल्ट हो, चाहे आपके 10 किस्म के और रोले हो, फाइनेंशियल ट्रबल्स हो, कुछ भी हो, यू कैन गो थ्रू थिंग्स टुगेदर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बरकरार है तो आप लोग किसी में से भी गुजर सकते हो। क्लियरली उन दोनों के बीच में कोई मसला होता है तो एक रिश्ता जो है वो टूटता है। तो एक तो ये बड़ी गलत मिसकंसेप्शन है कि जी इसने आके मेरा रिश्ता तोड़ दिया, या ये जो है फलानी थी, तो वो मेरे पे सारी की सारी चीजें आई थी, इवन दो मेरे आने से बहुत पहले वो रिश्ता टूट चुका हुआ था, बट ऑब्वियसली बिकॉज clearly that other person had not healed, तो वो she was holding on to the rage and the anger। तो बच्चों के बहुत कान भी भरे गए थे कि यू नो तुम्हारे फादर को ये छीन के ले गई हैं, दिस एंड दैट, और मैं गोल्ड डिगर भी बन गई थी, और बहुत सारी मैंने ऐसी बातें सुनी हुई हैं, राइट। और लड़कियां अक्सर सुनती भी हैं इस तरह की बातें। तो बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग। आई नेवर डिड दैट विद माई एक्स हस्बैंड। आज भी मेरी उनसे रिलेशनशिप है, और हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग कभी कभी मिलते भी हैं। देखें, उसका कसूर तो नहीं था, मेरी डिवोर्स उनके आने से बहुत पहले हो चुकी हुई थी। इट वाज़न्ट हर फॉल्ट दैट माय मैरिज फेल अपार्ट। अगेन, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि टू पीपल डोंट गेट अलोंग। इसका ये मतलब नहीं है दैट वी बोथ डोंट लव आवर डॉटर, राइट। सो ये प्लीज लोगों के ऊपर ब्लेम डालना छोड़ दें, अपनी इनसिक्योरिटीज लोगों पे निकालना छोड़ दें, खुद ही लो, अपना माइंडसेट चेंज करें एंड टेक दिस वर्ल्ड ऑन विद अ फ्रेश माइंडसेट। बिकॉज जितना आप फ्रेश माइंडसेट के साथ जाएंगे और माइंडफुल रहेंगे इस चीज पे कि यू नो व्हाट, अब ये चीजें बदल गई हैं, वो मूव ऑन हो गया है, तो आपके पास भी पूरा राइट है मूव ऑन होने का। आप भी मूव ऑन हो सकते हैं अगर आप उनके साथ ठीक रहेंगे, तो वो भी कल को आपका जो पार्टनर आएगा या कोई भी अगला इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो उसके साथ ठीक रहेंगे। एंड इसमें बच्चे अफेक्ट नहीं होते। चिल्ड्रन नीड टू नो दैट योर लव फॉर देम इज अनकंडीशनल। माँ और बाप का प्यार, ये नहीं कि अगर उन आंटी के साथ ज्यादा अच्छे रहोगे तो तुम्हें ज्यादा प्यार मिलेगा, या उन अंकल के साथ ज्यादा अच्छे रहोगे तो ज्यादा मिलेगा, या अगर माँ कहती है कि उन आंटी के साथ बड़ी बदतमीजी करना तो मैं तुमसे, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मुझसे प्यार, हम करते हैं, हमें ये रियलाइज नहीं होता बट हम करते हैं बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल।
कि देखो तुम मेरी बेटी नहीं हो, देखो तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो उन आंटी से ना जाके ज्यादा अच्छी तरीके से बात ना करना, या उन अंकल से ना ज्यादा अच्छे तरीके से बात ना करना, बिकॉज तुम तो मेरे बेटे हो। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है भाई? वो आप ही का बेटा है, वो आप ही का रहेगा, कोई उसको छीनने को नहीं तैयार। सो इसकी वजह से शुरू में मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोगों ने वो सॉर्ट आउट कर ली थी, बिकॉज मैं कभी उनकी माँ की जगह लेना भी नहीं चाहती थी। ना मुझे पता है कि जो और दूसरी कोई औरत आई थी उसने मेरी जगह ले लेनी थी मेरी बेटी के लिए। लेकिन मैंने उन बच्चों को समझाया और मैंने कहा भाई देखो आपकी अम्मी है एंड यू गाइज लव हर एंड शी इज योर मदर, आई कैन बी योर फ्रेंड एंड लेट्स बिल्ड अ रिलेशनशिप लाइक दैट। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो सारा उन बच्चों के जहर भरा हुआ था सारा कुछ, वो इवेंचुअली एक्चुअली एक पॉइंट आया था जब हम सबकी बहुत दोस्ती हो गई थी, हम ट्रैवल भी करते थे, हम साथ में कुकिंग भी करते थे, हम बड़ा मजा भी करते थे। एंड इवेंचुअली यू नो बट द थिंग इज बिकॉज द किड्स ग्रू अप एंड दे रियलाइज्ड कि ओ जो हमें सारी बातें इनके बारे में बताई गई थी कि इन्होंने हमारे डैड को छीन लिया है, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। बिकॉज जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो एंड व्हेन यू लिव विद समबडी, ऑब्वियसली हम मैंने ना कभी बच्चों को कटाने की कोशिश की, बट मैं जानती हूँ, देखें हम लोगों ने बचपन से कुछ चीजें सुनी होती हैं जो इनग्रेन हो गई होती है हमारे अंदर। जिस तरह ये सास बहू के रौले के, सास और बहू की तो दोस्ती हो ही नहीं सकती। सास और बहू की दोस्ती अगर सास और बहू बन के रखोगे तो हमेशा रहेगी, लेकिन हम बेटी बना लेते हैं 2 मिनट में कि तुम तो मेरी बेटियों की तरह हो, और फिर बेटियां एक्सपेक्टेशंस माओ वाली उनसे करती हैं और वो बेटियों वाली करती है। इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। तो सास और बहू की दोस्ती जरूर हो सकती है, उसी तरह से आपकी दोस्ती जरूर हो सकती है आपके स्टेप चिल्ड्रन से। पॉइंट शुड बी दैट यू शुड ऑल वर्क टुगेदर एज अ फैमिली। हम लोगों ने हमेशा ये भी तो बहुत नाइटमेयर कहानियां सुनी हुई है कि जी दूसरी बीवी ने आके बोटियां गिन के दी और अपने बच्चों को ये खिलाया, और यू नो सुतेले को ये खिला दिया, और सुतेले को ये कपड़े नहीं दिए, और सुतेले को स्कूल में भेज दिया। तो इस तरह की बातें किताबों में हमें बहुत सुनने को आती हैं, और हमने बिल्कुल ही जो है ना वो सेकंड वाइफ को एक वो बना दिया हुआ है। मतलब एक इंसान, हाँ अगर शादी करता है while you are there that is something else, I'm talking about अगर डिवोर्स हो गई है दो लोगों की, they've gone their separate ways, ठीक है, वो उनका अब एक दूसरे की जिंदगी की पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, but they have a kid in common, so what if the other person moves on? It doesn't matter, they have every right. Just because you are not moving on and you are not capable doesn't mean that they don't have the right to move on. Both of you have the right to be happy, whatever makes anybody happy. So अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे, forgive yourself and forgive the other person, ठीक है, कुछ अच्छे दिन थे, कुछ बुरे दिन थे, in the end it didn't work out, but you have to eventually let it go, and you need to carry yourself on and rebuild yourself with that mindset that you know what, आई केयर अबाउट माई सेल्फ। मेरी खुशी किस चीज में है, दूसरों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। हाउ आई बिहेव आई कैन कंट्रोल। दूसरे को हम गालियां देने में इतने बुरे होते हैं, दूसरे में हम गलतियां निकालने में और ब्लेम डालने में इतने बिजी होते हैं, हम मुड़ के कभी शीशे में नहीं देखते कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सो प्लीज एट द एंड ऑफ द डे बी अ गुड पर्सन। जितना गुस्सा अंदर रखेंगे ना वो आप ही को दिन ब दिन खाता जाएगा, अगले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगले जितने हैं वो अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, बच्चे प्यार के हैं, उनको प्यार मिलना है, दे आर गोइंग टू मूव ऑन, आप कुर्ते कुर्ते रह जाएंगे, एंड यू विल नेवर बी एबल टू रीबिल्ड योर लाइफ। सो टू सक्सेसफुली रीबिल्ड इट, प्लीज हैव अ बेटर माइंडसेट, हैव अ फ्रेश माइंडसेट। I've shared these things because ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी पर्सनली लाइफ में ट्राई की थी and they actually really worked for me. I wish I had more help. I wish I had videos like this जहाँ पे मैं जाके how women in the east गो थ्रू अ डिवोर्स और उनके क्या प्रेशर्स होते हैं और उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। मेरे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती बट नहीं थी, सो मैंने बहुत ही हिट एंड मिस सिचुएशंस कर करके, सो बहुत सारी सिचुएशंस हिट थी और बहुत मिस थी। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड दीज वर सम ऑफ द वेज जिससे मुझे लगा था कि अपना माइंडसेट और पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अगर मैं इधर से इधर शिफ्ट कर लूँ तो उससे आई कैन एक्चुअली मूव ऑन बेटर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दीज थिंग्स वर्क फॉर मी। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, यू नो आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद माई एक्स हस्बैंड। ठीक है हमारी नहीं बनी, ठीक है हमारी शादी नहीं चली, ठीक है कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जो भी हो गया, बट वी स्टिल रिस्पेक्ट ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी प्लान टू स्टे लाइक दैट। ये जो यहाँ पे तलाकें होती हैं, दुश्मनियां हो जाती हैं, पूरी जिंदगी लिखे लिखे कांटे लग जाते हैं और क्रॉसेस लग जाते हैं और बस अगला बुरा ही बन के रह जाता है, ये चीजें छोड़ दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जगह आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। जस्ट स्टार्ट फ्रेश, let everything be, think about yourself, rebuild your life. Happier parents mean happier children, and when your children see you both happy, both respecting each other, both respecting each other's spaces, your children are going to turn out happy. ना उनको depression होगा, ना anxiety होगी, ना और कुछ होगा। So if not for yourself, do it for your children.
एनीवे मैंने ये डिवोर्स सीरीज इसीलिए बनाई है सो आई कैन मे बी हेल्प अ फ्यू वुमेन, और अगर somebody is going through this, I'm really sorry to hear that you're going through this. I'm here if you want to get in touch with me. This is my Instagram page. आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में मैंने बात ना की हो और आप चाहते हो कि मैं करूँ तो आप मुझे लिख के बता सकते हो, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। एंड अपना ध्यान रखें, खुश रहें। I'm going to continue making these videos and I'm going to continue helping you out. So wait for my next video. I'll see you soon.